Okay. So very good afternoon to all of you and welcome to economics class. As far as the class is concerned, this is going to be for unit number 2, money and banking, where we are conducting the chapter 6 about money, right? And as far as the chapter money is concerned, maximum portion of this chapter we have already covered. As far as like barter system we have covered. We have also covered about that what are the forms of money. Even we have also covered the measurements of the money, that is M1, M2, M3 and M4. So today we are going to see the last session of this chapter, that is all about the money facts, some facts associated with the money that we are going to discuss. So I have 3 sections on the board, where the first section associated with Indian money system. Second section is what governs note issuing in India, means what is that system and how the notes are being, you can say it as being issued in the country India, right? And the last one we have is the concept of liquidity. So what is liquidity, that I will be explaining once we'll come to that topic. Fine. Okay. So let's come to the first one, that is the first side. The first side is all about Indian money system, right? Indian money system, where it says that first point is form of money. So what is Indian money system? In our country India, we use currencies like notes and rupees, right, or the paper money. This is what? This is the form of the money which is being used in the country. Okay? And this is being considered as the form which is being circulated in the entire country for the different kind of transactions. Second point is paper currency standard. As far as Indian this your money system is concerned, it is described as paper currency standard. What is it? It is described as paper currency standard. ठीक है? As far as paper currency standard is concerned, तो इसमें क्या exclude नहीं होगा, मतलब किस कहते हो कि exclude हो जाएगा. लाइक अगर हम पेपर करेंसी की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पेपर करेंसी को ही इंक्लूड किया जाएगा या फिर हम सिर्फ और सिर्फ नोट्स के बारे में ही बात करेंगे. It will include both, means it will include the money which is in form of paper notes and also it will include the what we can say it as the coins. तो द नेक्स्ट पॉइंट इज डजंट एक्सक्लूड कॉइन्स. तो इसमें क्या होता है, कॉइन्स को हम एक्सक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, कॉइन्स इसमें क्या होगा, इंक्लूडेड है. देन बोथ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, यानी कि दोनों, चाहे पेपर नोट हो और चाहे आपका कॉइन्स हो, ये दोनों ही तो हम करेंसी के फॉर्म में यूज कर रहे हैं ना अपनी कंट्री में. तो ऐसा थोड़ी है कि इंडियन जो हमारा मनी सिस्टम है उसमें से जब हम पेपर करेंसी स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो वी आर ओनली लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द करेंसी विच इज इन टर्म्स ऑफ पेपर मनी. वी आर कंक्लूडिंग बोथ, मीन्स कॉइन्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं और हम पेपर मनी को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और ये दोनों मिल करके हमारी कंट्री की क्रेडिट मनी बनती है. क्रेडिट मनी मीन्स द मनी विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज इट इज इशूड बाय द अथॉरिटीज, या फिर किसी अथॉरिटी के ऑर्डर पे इसको इशू किया जाता है. So as it is being issued by the authorities or by maybe by the order of the authorities, so definitely it is accepted and it is you can say it as by the laws also it is being meant so that it will be accepted by the people in the form of transactions when they are going to purchase or sell any of the commodities. ठीक है. देन हम डिनोमिनेशंस की अगर बात करें तो डेफिनेटली सबको पता है एज फार एज कॉइन्स आर कंसर्न, कॉइन्स का जो डिनोमिनेशन होता है मीन्स द नंबर 1000 इस तरह से डिनोमिनेशंस बनते हैं. डिनोमिनेशंस के हम कहते होते हैं कि कॉइन कि ये टेंडर मनी, अगर हम बात करें टेंडर मनी मतलब वो पैसा जो कि बाय द कोर्ट ऑफ लॉज meant acceptable for the citizens of the country to accept it in the form of transaction money. ठीक है. तो जब हम citizens of the country की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ये करेंसी जो चल रही है हमारी, चाहे वो नोट्स के फॉर्म में हो या फिर कॉइन्स के फॉर्म में हो, उसको लेने से मना नहीं करते हैं. Why? Because it is being issued by the order of the government or by the higher authorities. ठीक है.
तो इसीलिए इसको कोई लेने से मना नहीं करता है. दैट इज द रीजन इट बिकम्स अ लीगल टेंडर मनी. कैसी मनी बन जाती है? लीगल टेंडर मनी विच इज लीगली एक्सेप्टेड बाय द पीपल. देन इसमें दो टर्म्स आती हैं जब हम लीगल टेंडर मनी की बात करते हैं. तो देयर इज लिमिटेड टेंडर मनी एंड अनलिमिटेड टेंडर मनी. अब टेंडर मनी के कॉन्सेप्ट में जब लिमिटेड और अनलिमिटेड ऐड होता है तो व्हाट डज इट मीन? लेट मी टेल यू दैट. सो हियर इट सेज दैट कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लीगल टेंडर मनी, तो उसमें जब लिमिटेड की बात करेंगे तो पॉइंट्स लिमिटेड होता है. हाउ? सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट द सेटलमेंट ऑफ द पेमेंट. आपने कोई लैंड खरीदा, ठीक है, यू हैव परचेज्ड अ लैंड and the worth of the land is suppose 1 crore rupees. Are you going to accept points in form of 1 crore rupees? Will you accept it? Please comment in the comment section that are you going to accept 1 crore rupees as just points? No, nobody is going to accept it. So that is the reason it is a kind of limited tender money जिसको कुछ limited transactions के लिए ही यूज किया जा सकता है. सारे ट्रांजेक्शन्स के फॉर्म में आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे. बट अगर सपोज मुझे कोई 10 रुपीज, 20 रुपीज, 200 रुपीज तक का भी अगर कोई सामान खरीदना है तो देन द पीपल विल एक्सेप्ट एटलीस्ट 200 का कॉइन तो कोई भी ले लेगा. लेकिन जैसे ही वो ट्रांजैक्शन का लिमिट ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर कॉइन्स को एक्सेप्ट करना will not be a kind of validity for the people. So people actually reject when the transactions given to them in form of coins, and that is also huge transactions. ठीक है, अगर huge transactions हैं और वो आपको कैसे दिए जा रहे हैं? in form of what we can say it as coins. ठीक है. नेक्स्ट है आपका अनलिमिटेड टेंडर मनी. तो अनलिमिटेड में डेफिनेटली जो ट्रांजैक्शंस की in the term of paper notes, even in the form of credit money like paper, plastic money के फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हो. लाइक कार्ड्स के फॉर्म में आपने स्वाइप किया और पैसे ले लिया. बट क्योंकि यहाँ पे हम लोग पेपर मनी के बारे में बात करें तो पेपर ही बोलेंगे फिलहाल. तो पेपर मनी यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट. इसका रीजन क्या है? देखो दोनों में क्या रीजन है कि हम लोग कॉइन्स लेने से मना कर देते हैं और पेपर को ले लेते हैं आसानी से. पहला, द काउंटिंग इज वेरी इजी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पेपर मनी, बट व्हेन इट कम्स टू द काउंटिंग ऑफ कॉइन्स, so it will take a lot of time. Secondly, as far as the weight is concerned, the weight of the transaction, suppose it is a huge transaction, so it will be a heavy weight. We're talking about currency in form of coins, and weight कम होगा that you can even hold 1 crore rupees in your hand in a kind of bag. आप उसको कैरी कर पाओगे, बट आप कॉइन्स को 1 crore की कॉइन को आप हाथ में ऐसे कैरी नहीं कर पाओगे इन फॉर्म ऑफ बैग्स एंड ऑल. तो ये भी कुछ एक इसके रीजन है. दैट इज द पीपल make it as limited tender money coins and unlimited tender money is paper notes. Now please comment fast if this first section is clear to you as far as Indian money system is concerned. तो हमारी Indian money system कैसी है? ऐसी करेंसी जो सर्कुलेशन में चल रही है, लाइक पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. ठीक है, ये फॉर्म ऑफ मनी होता है. लाइक हमने फेट मनी पढ़ा था. कहता है कि एक ऐसा पैसा है जो कि सर्कुलेशन में चलता रहता है. ठीक है, और ये किसी अथॉरिटी या फिर किसी ऑर्डर के द्वारा इशू किया जाता है. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये फेट मनी को एक्चुअली डिनोट करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ कॉइन्स और पेपर मनी की बात की. तो फिड्यूशरी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वेयर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेज दैट what governs the note issuing in India, means how any country makes it possible for the issue of note, and what is that procedure through which they use to issue the notes. तो कैसे वो ऐसा करते हैं, what is that thing through which it is being done, तो हमें ये पता लगाना है. So it is written governed by minimum reserve system. इसमें क्या होता है, I have already actually told you about it, कि whenever the Reserve Bank of India is trying to issue some of the currency or some amount of the currency in the country, when it comes to the currency, रिजर्व सिस्टम है जो हमारी कंट्री में चलता है. क्या चलता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम. आपको इतना रिजर्व मेंटेन करना हो, but of what the reserve is going to be maintained, that I don't know. Let's see. Second point says that gold reserves. तो किसके फॉर्म में रिजर्व बनाना होगा? It should be in the form of gold.
गोल्ड के फॉर्म में आपको रिजर्व बनाकर चलना है क्योंकि इसकी वैल्यू हाई होती है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट सेज दैट मिनिमम रिजर्व्स, आपको जो मिनिमम, यहाँ पे सिस्टम का नाम ही था ना मिनिमम रिजर्व सिस्टम, तो गोल्ड ऐसा नहीं है जितना मन किया उतना ही रिजर्व आपने बना के रख दिया आप, या फिर हम कह सकते हैं कि जितनी नोट इश्यू करनी है उतने के बराबर का भी जरूरी नहीं है कि आपको रखना ही है। ठीक है, सो राइट, सो देन इट कम्स कि मिनिमम रिजर्व कितने का रखना है, एटलीस्ट मिनिमम दैट इज 115 करोड़ के बराबर का जो गोल्ड है, यानी इतने वर्थ का गोल्ड मिनिमम आपको अपने रिजर्व में रखना है। फिर आप कितने भी चाहो उतने नोट्स आप इश्यू कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम रिजर्व, एटलीस्ट ऑफ दिस अमाउंट द गोल्ड रिजर्व हैज टू बी मेंटेन्ड वेयर in the reserve of the government, or the RBI has to maintain this reserve. After that, RBI is liable so as to issue the currency which is in form of coins and also in the form of paper notes. Second point says that not proportionate to the currency in the circulation. And it is also not necessary कि suppose if you have to issue, suppose 1 crore notes हमको issue करनी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 करोड़ अगर आपको नोट इश्यू करनी है तो 1 करोड़ के बराबर का जो गोल्ड होगा वो आपको रिजर्व में रखना होगा, देन तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट ना। जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट इफ यू हैव टू इश्यू द नोट्स ऑफ 1 करोड़ रुपीज एंड 1 करोड़ का ही आप बराबर का गोल्ड रखोगे तो फिर कितना इन्वेस्टमेंट तो आपने ऑलरेडी कर दिया, तो करेंसी इश्यू करने का मतलब क्या निकला, राइट। सो दैट इज द रीजन देयर इज अ लिमिट। ये तो मैंने कम ही लिया था एक्चुअल में, चलो इसको मान लो और बढ़ा ही लेते हैं, सपोज 1,000 करोड़ कर लेते हैं, तब ये लिमिट से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर 1,000 निकालता करोड़ इज द लिमिट ऑफ द रिजर्व, द मिनिमम रिजर्व इन द हाउस ऑफ, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये तो गोल्ड रिजर्व की बात हो गई। अब कुछ ऐसा भी पैसा होता है जो कि लोगों के पास होता है, लोगों के पास इन द सेंस विद द पीपल, देयर इज सम मनी व्हिच इज विद द पीपल। तो अब जो लोगों के पास पैसा है अगर उसके बारे में बात करें तो इट सेज दैट द मनी विच इज विद द पीपल इज व्हाट टाइप ऑफ मनी, इट इज क्रेडिट मनी। कौन सी मनी होती है वो पूरी तरह से क्रेडिट मनी होती है। इट मीन्स हम लोग जो पैसे यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, दैट इज ऑल अबाउट द कॉइन्स, नोट्स, है ना, इसी फॉर्म में तो हम लोग करेंसी करते हैं। तो द करेंसी विच इज यूज इन द सर्कुलेशन एंड इज विद द पीपल, सो दैट इज एंटायरली अ क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पेपर मनी भी होता है और कॉइन्स भी होता है, दोनों इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, देन कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू बुलियंस। व्हाट इज बुलियन, कोई बताएगा व्हाट इज बुलियन? एज फार एज द वर्ड बुलियन मीन्स, बुलियन का सीधा मतलब होता है, वेरी सिंपल मीनिंग, बार्स। बार्स इन द सेंस बार ऑफ गोल्ड्स, बार ऑफ सिल्वर, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं बिस्किट्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो बार्स बनाना, बड़े बड़े बार्स होते हैं जो बनाए जाते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के। तो अगर बात आती है एज फार एज द बुलियंस, तो इसको हम, ये जो करेंसी जो लोगों के पास है, ये हमारे पैसे है ना, ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, ये पैसे हमारे पास आने के बाद हमारा बन जाता है, तभी तो हम इससे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बाकी की चीजें करते हैं। अगर गवर्नमेंट का होता तो गवर्नमेंट तो कभी भी आती और हमसे कहती है ऐसा है इतना पैसा निकालो, हमें तो इसको रिजर्व में देना है, या फिर ये सर्कुलेशन में कम पड़ रहे हैं तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, द मनी विच वी हैव इज आवर मनी, राइट। तो गवर्नमेंट यानी कोई भी इशुइंग अथॉरिटी, चाहे वो आरबीआई हो या फिर किसी भी कंट्री की कोई गवर्नमेंट हो, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो ऐसा पैसा जो कि लोगों के पास है उसको कन्वर्ट कर दे बार्स में और सिल्वर्स में। हाँ, अगर हम खुद अपनी मर्जी से चाहते हैं खरीदना, कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, परचेजिंग एंड सेलिंग हो रही है, तो दैट वी कैन डू, बट कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल एज फार एज द इशुइंग अथॉरिटी इज कंसर्न, यानी कि जिसने इसको इशू किया है वो लोगों ये बिल्कुल नहीं कह सकते bars of gold and silver.
ठीक है, तो दैट कैन नॉट बी डन. So these are the point which are associated with what governs note issuing in India. यानी कि क्या ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे हम नोट्स को इशू कर पाते हैं. तो दैट इज मिनिमम रिजर्व हमें मेंटेन करना होता है. कितने का मेंटेन करना होता है? मिनिमम ऑफ 115 करोड़ का. इतने का गोल्ड आप रिजर्व में रखिए, यानी कि आरबीआई इतने का गोल्ड मेंटेन करे रिजर्व में, और उसके बाद आरबीआई is free to issue notes in the environment, or you can say it is in the country, for maintaining the circulation. ठीक है. इसके बाद और क्या था कि जरूरी नहीं है जितने के आप नोट्स निकाल रहे हो उतना ही आपको रिजर्व रखना है. दैट कैन बी, यू कैन से इट एज नोट्स का इशू ज्यादा हो रहा है बट रिजर्व हमको इतना मेंटेन करना है. इतना कर दिया, उसके बाद आप चाहे जितना भी इशू करो. देन ऐसा पैसा जो लोगों के पास है, मनी विद द पीपल. तो मनी विद द पीपल इज ऑफ द पीपल, so that cannot be utilized or converted by the government or any of the issuing authority. So that is the reason ये कैसी मनी होती है? entirely एक क्रेडिट मनी होती है जो कॉइन्स या फिर what we can say it as रुपीज के फॉर्म में होती है, यानी कि पेपर मनी के फॉर्म में होती है. एंड कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू बुलियंस. बुलियंस मतलब बार के फॉर्म में. किस चीज के बार? सिल्वर के या फिर गोल्ड के बार्स. बाय द इशुइंग अथॉरिटी. कोई इशुइंग अथॉरिटी वो पैसा जो कि ऑलरेडी किसी पब्लिक के पास रखा है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसका पैसा नहीं है. ठीक है. सो दैट इज द थिंग. नाउ प्लीज मेंशन फास्ट दैट दिस सेकंड सेक्शन इज क्लियर. सेकंड पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर है? ठीक है. ओके. कमिंग टू द लास्ट वन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज आई फील. कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी. अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ लिक्विड? लिक्विड का नेचर कैसा होता है? Ma'am, it's 200 crores, including the gold stock and foreign property in which gold is. Yes, definitely correct. But we are talking only about the gold reserve. तो हमने अभी सिर्फ यहाँ पे गोल्ड रिजर्व की बात की, इसलिए फॉरेन प्रॉपर्टी को इसमें इंक्लूड नहीं किया. ठीक है. ओके. सो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट? दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी. can say it as going through. Like for example, अगर इसको एक किसी बड़े बर्तन में अगर पानी को फ्लो करवाया जाए तो पानी जहां तक का उसको स्पेस मिलेगा वहां तक का एरिया वो कवर करेगा. यही होता है ना, इजीली फ्लो हो जाता है. अगर उसको छोटे से बर्तन में डालेंगे तो वो उतनी लिमिट तक ही रहेगा. बहुत बड़े से बर्तन में डालते तो वो फ्लो होता हुआ चला जाएगा जितना ज्यादा उसको एस्केप मिलता है. तो लिक्विडिटी का फॉर्म क्या होता है? लिक्विडिटी मतलब इजीली कोई चीज हो जाए. ठीक है. तो यहाँ पे हम इजीली कन्वर्जन की बात करते हैं. So here, what is the liquidity says about? That is an asset. What it is? An asset. Now, what kind of? It refers to its convertibility into money or cash. यानी ऐसी कोई भी asset हो जिसको आप आसानी से किसी कैश के फॉर्म में या मनी के फॉर्म में क्या कर सको? कन्वर्ट कर सको. So then it will be called as that it has the liquidity. ठीक है. अब कैसे? Like checks and demand deposits. We have already discussed about the checks and demand deposits. So एक छोटा सा इसका इंट्रो ले लेते हैं. Checks means it is that part of you can say it as a kind of instrument which is being used by the one who has to pay the payment, or might be the one who is liable to somebody, right? Like for example, I gave yesterday that was, suppose I have a check and I want to give a payment to my employees or maybe to my friend for some or the other things. So in that case what happens? अगर हम उसको चेक दे रहे हैं तो that check contains some amount, लेकिन क्या वो अमाउंट उसको इमीडिएटली उसके हाथ में मिला इन फॉर्म ऑफ कैश या फिर मनी? नहीं मिला. लेकिन अगर ये कैश या सॉरी ये जो चेक है, इस चेक को वो अगर बैंक में लेकर जाता है और बैंक में अपने काउंटर पे देता है तो इमीडिएटली ही कैन एनकैश इट. या तो वो उसके इमीडिएटली अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर अगर वो अमाउंट छोटा है तो ही कैन गेट इट इन फॉर्म ऑफ कैश ऑल्सो. तो ये कैसा है? ये लिक्विडिटी है इसके अंदर. इट हैज द लिक्विडिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करेंसी. तो दैट इज तो फॉरेन एक्सचेंज में आ जाएगा ना जब आप ट्रांसफॉर्म में कर लोगे. देन कमिंग टू डिमांड डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स में क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, लेकिन इसको एक्चुअली हम ये कहेंगे कि it is a kind of concept where you can exchange
मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स का मैंने कल बताया था, इट इंक्लूड्स दैट इज डीडी। अगर डीडी की बात करें, इट इंक्लूड्स टू थिंग, इसमें दो चीजें आती हैं, एक का आता है और एक सा आता है। तो वी हैव कासा, कासा इंक्लूडेड इन डीडी, वेयर का मीन्स करंट अकाउंट, सी ए मीन्स करंट अकाउंट एंड एस ए मीन्स सेविंग अकाउंट। तो ये दोनों अकाउंट किस में आते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स में आते हैं। तो इट मीन्स दैट कि ऐसा अकाउंट जहां पर देखो अब चेक्स की बात हो रही है, तो अगर करंट अकाउंट की बात की जाए, करंट अकाउंट में तो एक दिन में बहुत बार चेक्स का लेन देन होता रहता है। सेविंग अकाउंट्स में भी यही होता है। अगर हम कहीं किसी कंपनी में के ओनर हैं एंड आई हैव टू गिव माय व्हाट वी कैन से एज माय एम्प्लॉइज द पेमेंट ऑफ देयर्स, सो इन दैट केस उनको हम चेक्स को इशू करते हैं अगर उनकी पेमेंट जो है वो बहुत लार्ज होती है एंड लार्ज पेमेंट को हम ऑन द स्पॉट नहीं कर पा रहे, तो हमने सबको क्या कर दिया? चेक दे दिया है। नाउ प्लीज विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अकाउंट ट्रांसफर। तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि मैम इजिली तो अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है, क्या जरूरत है चेक की देने की। तो एज वी आर टॉकिंग अबाउट कि चेक की क्या इंपॉर्टेंस है, सो दैट इज द रीजन वी आर टेकिंग दिस पार्ट। ठीक है, तो एक्सक्लूडिंग दैट, सो दिस डिमांड डिपॉजिट यानी कि करंट अकाउंट और आपका सेविंग अकाउंट, इन ये दोनों ही चेक से रिलेट करते हैं, पहला। दूसरा ये होता है कि इसमें आप जब मन चाहे पैसा आप निकाल सकते हो या फिर डिपॉजिट कर सकते हो। बट टर्म डिपॉजिट में क्या होता है, एक और टर्म यहाँ पे ऐड कर देते हैं, टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मीन्स एसोसिएटेड विद टाइम। अब क्योंकि यहाँ पे टाइम आ जाएगा तो इट मीन्स जो पैसा किसी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए फिक्स करके रखा हुआ है, तो अब उस पैसे को आप विद इन टाइम, यू कैन से विद इन द लिमिटेशन ऑफ टाइम, आप उसको नहीं निकाल सकते हो। आफ्टर मेच्योरिटी ओनली दैट मनी कैन बी विदड्रॉन। तो इन बिटवीन अगर आपको जरूरत है तो ये टर्म डिपॉजिट में काम नहीं आता है। तो हम लोगों ने कल जो एक कॉन्सेप्ट की बात की थी, दैट वाज मेजरमेंट ऑफ मनी। I told you yesterday that measurement of money के concept में M1 is the only one which is first of all is the syllabus of class 12th. Secondly, as far as it is being concerned, तो यहाँ पे क्या होता है कि M concept में will include all demand deposit, but will not include any term deposit. राइट, तो टर्म डिपॉजिट को ये बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, ये एक चीज होगी। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टर्म डिपॉजिट के बारे में बात है, क्यों नहीं इंक्लूड करता है हम लोग ये भी पढ़ेंगे। तो टर्म डिपॉजिट के केस में टर्म डिपॉजिट क्या होता है? लेस लिक्विड होता है। क्यों लेस लिक्विड क्यों है? रीजन कि इसको हम आसानी से कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं इन कह सकते हैं मनी के फॉर्म में, क्योंकि इमीडिएटली तो कन्वर्ट नहीं होगा। राइट, इमीडिएटली आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। राइट, तो इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज द रीजन इट इज टर्म डिपॉजिट। इसके बाद क्या है आपके पास? डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है कि इसको आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो मनी के फॉर्म में। जैसे अभी चेक लेकर गए और आपको अगर कुछ भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपने इमीडिएटली वो कैश निकाला चेक के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या इसको आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। किसी बंदे को आपने चेक दिया है तो वो भी जाकर के बैंक से पैसे निकाल सकता है। लेकिन टर्म डिपॉजिट क्योंकि टाइम से लिमिटेड है, तो आप इसको इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, आपको वो 6 साल तो वेट करना ही होगा, सो दैट यू कैन गेट योर मनी विद यू। ठीक, ये एक चीज थी। फिर M1 की अगर बात की जाए तो M1 इज मोर लिक्विड बट M3 एंड M4 इज लेस लिक्विड। अब कुछ लोगों को ये चीज नहीं समझ में आएगी कि व्हाट इज M1 एंड M2 एंड M3। ठीक है, तो हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं, ऑल्दो इन यस्टरडेज क्लास आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो यूट्यूब पे भी जाकर के देख सकते हैं, मैंने अपलोड किया है। ठीक है, तो M1 में क्या है? M1 में वी हैव डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि डीडी आता है, देन आपका करेंसी जो कि पेपर के फॉर्म में और कॉइन्स के फॉर्म में है, एंड इवन अदर डिपॉजिट्स। ये सारी चीजें मिल करके बनती है हमारा M1, और ये सारे ही इजिली कन्वर्टेबल है, इसीलिए M1 क्या है? मोर लिक्विड है। लेकिन M3 में क्या होता है? इसमें टर्म डिपॉजिट का कुछ पार्ट आता है, इवन M4 में भी कुछ पार्ट टर्म डिपॉजिट का आता है, इसीलिए ये क्या है? ये लेस लिक्विड होता है। ठीक है, एज फार एज M1 इज कंसर्न, M1 दोनों में होगा, लेकिन M1 के साथ साथ क्योंकि इसमें टर्म का पॉइंट ऐड हो जाता है, टाइम के साथ ऐड होता है,
तो दैट इज द रीजन ये कैसा हो जाता है, ये लेस लिक्विड हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट M3 एंड M4। अब यहाँ पे एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज फार एज दिस कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, तो अगर सपोज देयर इज एन एग्जांपल, अब आप बताना कि ये लिक्विड होगा या लिक्विड नहीं है, ठीक है। सपोज देयर इज, हम लोग डीडी की बात कर रहे थे तो डीडी का ही एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है। एक कंपनी है, जिस कंपनी का जो ओनर है वो अभी बहुत लॉसेस में चल रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी के लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, मतलब दे आर अनअवेयर अबाउट द सिचुएशन कि ही इज गेटिंग इन लॉसेस और उसके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है कि वो ट्रांजैक्ट कर पाए, ठीक है। अब उसने अगर किसी को चेक दिया है, विल इट बी इजिली कन्वर्टेबल, क्या इसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे आसानी से? कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। अब एक्सेप्शंस तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चेक कन्वर्टेबल नहीं है, चेक इज कन्वर्टेबल, बट आपके अकाउंट में पैसे होने भी जरूरी है। अगर आपके अकाउंट में उतना मनी है जितने का आप चेक इशू कर रहे हो, तो देन इट इज कन्वर्टेबल। बट इफ यू आर इशूइंग द चेक दैट इज अ नॉट नेगोशिएबल चेक, और जो कि एक फेक चेक है, तो वो बाउंस हो जाएगा, ठीक है, अपने आप वो बाउंस हो जाएगा। और अगर 3 टाइम्स आपका चेक बाउंस हो रहा है, तो फिर एक्शन लिया जाएगा फ्रॉम द बैंक साइड ऑन दैट अकाउंट विच इज इशूइंग द चेक्स टू द पीपल एज अ फेक चेक, ठीक है। तो ये एक चीज होती है। सो आई होप आज का जो टॉपिक है वो सबको क्लियर है। तो इसको एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं सो दैट ये पूरा टॉपिक मेमोराइज हो जाए। So coming to the one, this is Indian money system. So what is Indian money system? It is a form of money. Form of money, especially fiat money. Fiat money, which includes the coin as well as paper money, issued by authorities or by the order of some higher authorities for the circulation in the economy, for maintaining the currency circulation in the economy, right? Now, as far as Indian money system is concerned, so this concept can be described as paper currency standard. But we have to keep this in mind that it will not exclude coins. Coins भी इसमें include होंगे, ठीक है? Then that is the reason here both coin as well as notes, both are working as a credit money, right? Last point is टेंडर मनी। एज फार एज टेंडर मनी इज कंसर्न, तो लिमिटेड टेंडर मनी होता है कॉइन्स, बट हमारा जो व्हाट यू कैन से इट एज लार्जेस्ट टेंडर मनी या अनलिमिटेड टेंडर मनी होता है पेपर नोट्स। क्यों? क्योंकि आप सेटलमेंट्स की अगर बात करो इन फॉर्म ऑफ कैश, तो कॉइन्स लिमिटेड ट्रांजैक्शंस के लिए ही यूज किया जा सकता है, बट पेपर नोट्स कैन बी यूज फॉर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस। वन मोर पॉइंट इज लेफ्ट ओवर हियर, दैट इज ऑल अबाउट डिनोमिनेशंस। तो कॉइन्स के स्मॉल डिनोमिनेशंस होते हैं, बट एज फार एज पेपर नोट इज कंसर्न, इसका डिनोमिनेशन लार्ज होता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट गवर्न्स, दैट इज कॉल्ड एज नोट इशूइंग इन इंडिया। तो हमारी कंट्री में जो गवर्निंग का सिस्टम है, तो दैट इज अबाउट मिनिमम रिजर्व हमें मेंटेन करना है अगर हम नोट के इशू की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर नोट इशूइंग में जो हमारा मिनिमम रिजर्व रखा जाएगा, दैट विल बी ऑफ एटलीस्ट मिनिमम 115 करोड़ का। इसके बाद आप इतने का गोल्ड रिजर्व मेंटेन करके आप जितना भी चाहो नोट्स को इशू कर सकते हो। ऐसा कोई भी पैसा जो कि आपका कह सकते हैं लोगों के पास है, विद द पीपल है, be converted into the bullons. Bullons means a kind of bar of silver and gold by any of the issuing authority. Maybe the same authority who has issued it, the same authority can even not, you can say it as convert it into the bar of gold and silver because they are not authorized to do it, ठीक है। एक चीज और, जब हम गोल्ड रिजर्व रखते हैं और जो हम कॉइन्स का इशू करते हैं या फिर नोट्स का इशू करते हैं, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जितने के बराबर के आप नोट्स को इशू कर रहे हो या करेंसी इशू कर रहे हो उतने ही आपको रिजर्व भी रखना होगा या गोल्ड का रिजर्व रखना होगा, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, last point is all about concept of liquidity. So as I said, what is the nature of water as a liquid? So very freely flowing, right? Easily convertible into whatever the shape it takes, or whatever the you can say it as the utensil which is being used to as to keep it, so as to kept it, it will take the shape of the same as well as it will adjust it according to the surrounding. तो इन द सेम वे लिक्विड का जो नेचर होता है, यानी कि कैश के फॉर्म में जो लिक्विड होता है, ये जो असेट्स होती हैं लिक्विड की तरह, यानी कि हमारा चेक या फिर
डिमांड डिपॉजिट्स, ये दोनों भी इजिली फ्लोइंग होती है, इनको आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, मनी या फिर कह सकते हैं कैश के फॉर्म में। ठीक है, और क्या था यहाँ पर कि यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक टर्म डिपॉजिट होता है और एक डिमांड डिपॉजिट होता है। टर्म डिपॉजिट लेस लिक्विड इसलिए है एज इफ इट इज टाइम बाउंड, इट विल बी रेफर टू अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट, तो इसको आप इजिली कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो टाइम लिमिट पूरा ना हो जाए। ठीक है, सो ये लेस लिक्विड होता है। And demand deposit is more liquid as if it can be easily convertible anytime whenever you need or whenever there is a requirement. So that is the reason it is more liquid. Next, this is relates to M1, M2, M3 and M4. These four relate to the concept of measurement of money. I have uploaded this video yesterday only. Please check it. So this is M1 which is about मोर लिक्विड, वाई इट इंक्लूड्स डीडी, इसमें डीडी को इंक्लूड किया जाता है इसीलिए ये ज्यादा लिक्विड है, और ऐसे जैसा कि फीचर है हमारे टर्म डिपॉजिट का ये लेस लिक्विड होता है, इसीलिए M3 एंड M4 दोनों में ही टाइम डिपॉजिट्स की बात की जाती है एंड दैट इज द ओनली रीजन कि ये लेस लिक्विड होता है। ठीक है, सो आई होप टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू एवरीबडी। प्लीज गिव योर रिव्यूज रिगार्डिंग टुडेज क्लास, द टॉपिक इज क्लियर और नॉट क्लियर। From my end, the topic is done, and thank you so much for joining the class also.